तो ये जो गोली चली है तो इस गोली की तैयारी हुई है, इसके लिए आर्म्स आए हैं। यूथ का इस्तेमाल जो कहते हैं हम कि अभी सबसे दुनिया का सबसे यूथ अगर कोई देश है तो हमारा देश है। तो क्या इसी के लिए यूथ देश जो कहते हैं लोग कि सबसे ज्यादा हमारा यूथ देश है, क्या वो ये बात कह के इस बात पर खुश होते हैं कि हम इनका इस्तेमाल चाहे जितने लोगों की हत्या करवानी हो, जहां हमने करवाने हो हम करवा सकते हैं? क्या इस बात हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज 28 फरवरी को फ्राइडे को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई प्रेस क्लब में, जो नई दिल्ली में प्रेस क्लब है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के कुछ कंसर्न शहरियों के ज़रिए, इम्पॉर्टेंट लोगों के ज़रिए हुई जो दिल्ली में फसादात हुए हैं नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ़ और उसके समर्थकों के बीच में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान, नई दुनिया उर्दू वीकली अखबार के एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी साहब, और पत्रकार मिस्टर अनिल चमाड़िया, मिस्टर प्रशांत टंडन और जाने माने वकील P.I. जोस, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से नियाज़ फारूकी और जमात इस्लामी की तरफ से इंजीनियर अमीनुल हसन साहब। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम आपके सामने सीधे पेश कर रहे हैं और हमारी ये इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश है कि जो ख़बर है उसको पूरी तरह से आप तक पहुंचाया जाए। आमतौर पर जो एडिटिंग होती है अखबारों में, टेलीविज़न चैनलों में, उस सब से हटकर वो एडिटिंग की दीवार तोड़कर सीधे दर्शकों तक हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचा रहे हैं। मुझे उम्मीद है इससे आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। This is not a very happy moment for us to come over here. The situation, as all of you know, Delhi is passing through second of its worst situation, and there has been lot of anguish, disturbance and absolutely helplessness, and it seems that it is not a spontaneous one, but it was well designed, well orchestrated. Otherwise, it would not have been possible that the pupils loaded in the trucks are coming from across the border of Delhi. And it has been done at a time when nobody would have expected, when such an important dignitary, international dignitary is here. So this kind of thing would happen, but I think perhaps they have taken everybody by surprise, and that is what actually is a design, that nobody would be expecting it, this will happen, and then they did all those kind of things. I would not take much of the time. We have already given the statement, which I will quickly read it. Press statement by concerned citizens. We deeply mourn the loss of lives in the recent violence in northeast Delhi. Our thoughts and prayers are with the families of those killed and injured. The current pattern of violence and government's attitude bears a distinct resemblance to 1984 and 2002. The Home Minister of India is directly responsible for law and order in Delhi. He has been a spectacular failure in discharging his basic duties
and we demand that he resign immediately. Also, the government and Delhi police have failed in acting against those giving inflammatory speeches and inciting violence against a particular community. Had they acted in time, much of the ensuing violence and killing could have been prevented. We are deeply disturbed by the fact that not only the hate speeches continues unabated, the threatening and provocative tone of important constitutional functionaries such as Chief Minister of UP, Yogi Adityanath, continues to fuel an atmosphere of hate and animosity. Questions must also be asked of the failures of the IB to report the entry of rioters from areas adjoining Delhi into the capital. Both communities in Northeast Delhi have reported that outsiders entered in the city and indulged in large-scale killings and violence. Gun culture, which is alien to Delhi, was seen to be prevalent during the violence and led to large number of deaths. It's clear that unlicensed arms were distributed and used on large scale. Why did intelligence fail in preempting their distribution and use? We don't find any answer to this. We have been getting reports that even now, when we are saying even now, just Mr. Niaz Faruqi has just come from that area. So even now, relief and rescue workers are being prevented from entering riot-affected areas. We say this with heavy heart that a section of the media has also contributed in vitiating the atmosphere, fueling hatred because of their strident chauvinist portrayal over a sustained period of time. We need not to give the names, but everybody knows it, that some of the media, more particularly some of the Hindi media, the way they have spread the whole thing, that's very, very unfortunate at this time. We should have been more careful. The brutal violent assault against those protesting peacefully against CEA, NPR, NRC are a gross violation of the basic tenets of democracy. The right to dissent and protest peacefully against a government decision must not be portrayed as anti-national. That's my right. That's my fundamental right if I'm protesting. We are not talking on behalf of anybody, but we are just trying to give a statement of fact. We strongly demand immediate arrest under stringent penal laws of those spreading hate and inciting violence. And if at all the police or the Home Ministry or the local government even would have been careful, at least 3-4 people should have been put in the stringent penal action, and we know the names, we need not to give the name to you also. Time-bound, court-monitored inquiry fixing responsibilities and accountability. Number 3, government should ensure safe access to relief and medical workers in affected area. And as I said, just about an hour ago, Mr. Niaz Faruqi came from the Guru Tegh Bahadur, and there is a dearth, all of us, without having any distinction of who is there, but we must help them because this is the time when they need our help. The center must provide government jobs to one family members of those killed without any discrimination of religion. The center must adequately compensate for loss of livelihood and property and financial assistance to those injured. We are encouraged, and this is a silver lining in fact, we are encouraged by the manner in which members of both the communities have at great risk to themselves shielded and protected other communities during the riot. The government must follow their example. We appeal to all government across the country to work proactively to prevent communal flare-up in their respective states. We appeal to the people of India to stand up unitedly to defeat the nefarious mechanization of divisive forces and not allow anyone to disturb social peace and communal harmony of our country and society. Friends, this is our official statement, but we have the luminaries and very active people
from various fields. And I would like to introduce, as you know, on my extreme left is Mr. Ashok Bharti. Next to him is Niaz Farooqi Sahab, Niaz Ahmed Farooqi Sahab. He is the Secretary of Jamiat Ulama Hind. We have a very well-known person from amongst your community, Mr. Shahid Siddiqui. On my right is Dr. Islam Sahab, Dr. Zafrul Islam Sahab, who is at present the chairman of Delhi Minorities Commission. We have Mr. Anil Chamadia Sahab and Mr. P.I. Jose and Aminul Hassan Sahab from Jamaat Islami. Before we open the whole thing, I think each one of us may like to say something, which we start right from our chairman, Delhi Minorities Commission. अफसोस की बात है कि आज के इस ज़माने में भी उस किस्म की चीज़ें हो रही हैं जो कि 20-30 साल पहले हुआ करती थी। आज सोशल मीडिया के ज़माने में कोई चीज़ छुप नहीं सकती। ऐन उस वक्त जब ट्रंप यहाँ आने वाले थे उस वक्त दंगा किया गया, बल्कि कराया गया। उसको बाहर से लोग लाए गए, ट्रक लाए गए, असलहे लाए गए, डंपरों में पत्थर भर भर के लाए गए और ये कराया गया। तो ये सब पूरा एक प्लान था। और मैं समझता हूँ कि ये जो है एक छोटा सा गुजरात हमारे यहाँ हुआ है, 1984 को दोबारा इनेक्ट किया गया है। कहने को तो इस वक्त ये कह रहे हैं कि तकरीबन 38 लोग मरे हैं, लेकिन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है कि तकरीबन 100 लोग मरे हैं इसके अंदर। और जो घायल हैं वो तो सैकड़ों में हैं। बहुत से लोग दूर दूर चले गए हैं, यूपी में लोगों में चले गए हैं, लोग पड़े हुए हैं, लोग अस्पतालों में हैं, अस्पतालों में उनका ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, लाशें पड़ी हुई हैं, गुरु तेग बहादुर में लाशें पड़ी हुई हैं, उनका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। ये कितनी गलत बात है ये कि ये सरकार इस तरह से काम कर रही है। उसके अंदर मैं दिल्ली सरकार को भी कहता हूँ, उन्होंने भी अपना काम जो है पूरा ठीक से नहीं किया है। ये बात सही है कि उन्होंने कुछ कॉम्पनसेशन का ऐलान किया है, चलिए वो भी ठीक है, लेकिन कॉम्पनसेशन बहुत ही कम है। और मैं डिमांड करता हूँ, और मैं उनको लिख कर भी भेज रहा हूँ मैं, कि आप लोग उसको कम से कम डबल कीजिए। आपने पुलिस जो ऑफिसर वो मार्टर हुआ है, वो शहीद हुआ है, उसके लिए तो ठीक किया है, लेकिन आम आदमी का भी उतना हक है। इसलिए कि वो मरा इसलिए है कि आपकी नाअहली की वजह से मरा है, आपके निकम्मेपन की वजह से मरा है। स्टेट का जो जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की, उसकी कमी की वजह से मरा है। इसलिए स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो लोग मरे हैं उनको भी, जो लोग ज़ख्मी हैं उनको भी, और जो लोगों के घर, जो उनके कारोबार, जिनकी दुकानें जब तबाह कर दी गई, लूट ली गई हैं, उनको भी मुनासिब कॉम्पनसेशन देना चाहिए। किसी कमरे में बैठ के फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि फील्ड में बाकायदा देख करके करना चाहिए कि एक्चुअल जो उनका क्या नुकसान है, कैसे भरपाई उनकी हो सकती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने किया है उनके नाम हम जानते हैं अच्छी तरह से, बल्कि हमारे एक हाई कोर्ट के जज ने उनके खिलाफ 24 घंटे के अंदर पुलिस से कहा FIR करो। और अफसोस है कि इस ज़माने में ऐसा हो सकता है, हमको यकीन नहीं था कि उस जज को उसी वक्त उसी दिन ट्रांसफ़र कर दिया गया दिल्ली से, ताकि कुछ न हो। और अगले जज ने आगे कह दिया कि 24 घंटे में नहीं बल्कि 1 महीने के अंदर करो। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि ये आज हो रहा है इस मुल्क में। और ये उसी तरह की चीज़ें हो रही हैं जैसे कि बंजारा को 13 साल के बाद उनको एलिवेशन किया गया उनको और उनको पुराने पैसे दिए जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जो लोग आज हुकूमत कर रहे हैं उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा है। आज हम इस वक्त 21st सेंचुरी में हैं, ये चीज़ें छुप नहीं सकती हैं। पब्लिक देख रही है, दुनिया देख रही है। दुनिया में आज हमारा मजाक बन गया है। यहाँ पर तो नहीं छपता है, लेकिन जो चीज़ें न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रही हैं, जो गार्डियन में छप रही हैं, जो वाशिंगटन पोस्ट में छप रही हैं, वो सब दुनिया पढ़ रही है और देख रही है, और उससे हमारे मुल्क की बेइज्जती हो रही है। तो ये चीज़ें जो है मैं मुतालबा करता हूँ कि ये बंद करें, ये खेल बंद करें। और जो जिम्मेदारियाँ की हैं, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख कर कसम खाई है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की लाज रखें। और इस मुल्क में सही माने में या तो सोसाइटी की तरक्की है और उसकी भलाई है, उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करें, वरना यहाँ से चले जाएँ। उनकी जगह ये नहीं है अगर वो ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं कहना चाहता था। और ये बातें जो अभी आपसे कही गई हैं, और सबसे अहम बात यह है कि जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, ख़ास तरीके से अमित शाह, चूँकि अमित शाह डायरेक्टली दिल्ली पुलिस के सरबराह हैं,
Amit Shah heads the Delhi police. He controls the IPS cadre. So he is responsible personally on this, and it was very strange that not Mr. Amit Shah, but another person who is not concerned with this, who is the National Security Advisor, he went to the area and toured the area and tried to show that the government is concerned about this. So Mr. Amit Shah should resign. This is at least he should do. Long ago, 40 years, 50 years ago, when small things used to happen, Mr. Shastri resigned when only an accident of a train accident happened. So now it's a big thing. It has brought shame to our country, and person who has brought shame to this country should go. Thank you very much. I would request Shai Siddiqui sir. I would first like to congratulate the people of Delhi, Hindus, Muslims and everyone, that they have stood the onslaught of hate which was unleashed on Delhi for last few months because of Delhi elections. And after that, what has happened in last 4-5 days, whosoever has done it has united the people of Delhi much more than before. So that is a very, very positive signal which we have got, that on the ground, what media calls ground zero, Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, they have come together, and that's a very, very positive sign. I'm not sure how many people have died, and I don't care whether its figure is 40 or it's 50 or 60 or whatever it is. The fact is that these killings took place because of the lack of intelligence reports, lack of police proactive role of the police, because of the failure of the administration, and because of the Home Ministry of Delhi, Home Ministry of India. Because Delhi comes under the Home Ministry, and Home Minister should take the responsibility for what has happened. At the moment, immediately, these areas need relief. That relief, I feel, is not forthcoming as it should have. Aam Aadmi Party government should have played a much more proactive role, which we did not see for the first few days. They have now started rising, not to the occasion, but they have started rising. I don't know how far, because the report from the hospitals is that even now, the facilities which should be there to those who are injured, those who have been killed, is not there. I demand from the Chief Minister of Delhi that a minister should be appointed to look after those who have been killed or those who have been injured. The hospitals, there should be responsible people sitting, responsible ministers or officials of the Aam Aadmi Party sitting in the hospitals. They can't say that hospitals are not under us. Hospitals are under them. So they have to take the responsibility for what is happening in the hospitals, and my reports are not good. The fact that the post-mortem is taking so long, I think there is something going terribly wrong, because it seems that deliberately postmortems were delayed. The one reason for delay was that the government did not wanted to come out with the real figures of the death. So they gradually wanted to release the figures. So gradually the figures are coming. But the story which is being built up is that now they are discovering the bodies. My information is that 2 days back we had this information that 38 people had died. Now how far it has gone up, I don't know, because they are not, so we should not get into unreliable figures, but that is the case. Everything else we have said, the demands we have made here, but we want inquiry by a sitting High Court judge. Sitting High Court judge should inquire into what has happened in a month's time, because there definitely was planning. There definitely was a conspiracy, and that conspiracy has to be exposed, because the arms have come, preparations have taken place, attacks have been made, systematic attacks have been there. So that was not possible without intelligence knowing what was happening, despite such
huge intelligence network and huge, I mean, when the President of the United States was coming to India, all intelligence, Indian and foreign, was very active in Delhi, and despite that, all the arms coming, Delhi was not known for gun culture. जो गोली मारो की जो बात हो रही थी, तो गोली मारी गई, दिल्ली में गोली नहीं चलती थी। दिल्ली में हमने कभी नहीं देखी कि इस तरह की गैंग वॉर हो, इस तरह की ओपन गोलियां चली हो, रॉयट्स होते थे। तो ये जो गोली चली है, तो इस गोली की तैयारी हुई है, इसके लिए आर्म्स आए हैं। इसके ऊपर मैं समझता हूं कि मीडिया को भी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये आर्म्स आए कहां से, कौन लाया, किसने भेजे और क्यों इस वक्त ये इस्तेमाल हुए, खास इस दिन। तो ये बहुत ही अदब के साथ आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि कृपया इसको दंगा न लिखिए। ये प्लान अटैक था और उसी रूप में लिखा जाना चाहिए। देखिए, हिंदू मुस्लिम ये जो 94 का जब हमला हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं सीख राइट्स। सीख जब 84 का, ये कैसे सीख राइट्स हो गया ये, जबकि वही मारे गए विक्टिम वही दलित। 2 अप्रैल 18 को दलित मारे गए और उस समय तमाम मीडिया में ये छपा दलित हिंसा। ये कहाँ का इंसाफ है? जो मारा जा रहा है उसी नाम से आप उसको वायलेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मेरी एक अपील है कि स्पॉन्सर्ड रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का मीडिया है, कम से कम इतनी समझदारी होनी चाहिए कि जो ये प्लान अटैक है उसको उसी रूप में लिखा जाना चाहिए। तो एक बात तो मैं ये बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कि ये जो साजिश का सच सामने आया है, उसको और किसी तरह से और खास तरह से कॉमनल एंगल से डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक है और ये कम से कम एक डेमोक्रेसी जो हम लोग बनाना चाहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेमोक्रेसी हम बनाना चाहते हैं, उसको बिल्डअप करना चाहते हैं, उसके लिए तो कतई अच्छा नहीं है। जब ये लोकतंत्र बचा रहेगा तभी ये मीडिया भी बचा रहेगा। इस बात को हम लोग को समझना चाहिए। तो एक तो बात मैं ये जरूर खास तौर से अपने मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि दर्जन भर से ज्यादा जो बड़े बड़े अखबार चैनल्स हैं, उनके पत्रकारों को पीटा गया, मारा गया, नंगा किया गया, और जब तक कि उन्होंने ये न कह दिया कि वो हिंदू है तब तक उनको नहीं छोड़ा गया। ये सबसे ज्यादा शर्मनाक स्थिति है और कम से कम इस हालात पर तो मीडिया को सोचना चाहिए कि क्या हालात बने हुए हैं ग्राउंड पर। एक एक आदमी की पहचान करके मारी गई है। तो एक तो बात मैं जरूर ये कहूंगा कि स्पॉन्सर्ड रिपोर्टिंग से बचने की कोशिश करें। बहुत ही ज्यादा नाजुक मसला है, बहुत ही नाजुक समय से हम लोग गुजर रहे हैं। देश को हम लोगों ने बहुत मुश्किल से आजाद कराया है, बनाया है, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। कम से कम इस बात का ध्यान रखें, अगर कुछ हम आजादी कमाई नहीं कर सके हैं तो उसको गंवाने की तो कोशिश न करें। ये मेरी आपसे अपील है। दूसरी बात कि मुझे जो जानकारी मिले, देखिए घायलों की संख्या जरूर आ रही है वहां पर जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में है, लेकिन इतना दहशत है, पुलिस ने इतना अविश्वास अपना खोया, मतलब विश्वास खोया है, अपना भरोसा खोया है लोगों में कि लोग अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, आज मैं जब सुबह यहाँ आ रहा था तो मैंने दरियाफ्त किया, बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर अपना इलाज करा रहे हैं, क्योंकि वो कोई लफड़े में नहीं फंसना चाहते हैं। और ऐसे लोगों की तादाद बड़ी तादाद है। मैं ये बहुत ही आपको विश्वास से कहना चाहता हूँ। और ये डॉक्टरों ने, जो आसपास के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हैं, उनकी जानकारी के आधार पर मैं बात ये आपके सामने कह रहा हूँ। और सबसे ज्यादा खराब बात हो रही है, आप ये हम कल्पना नहीं कर सकते हैं इस समय में, जो आधुनिक समय में जिसको हम कहते हैं कि हम बहुत ही ग्लोबली इतना एडवांस हो गए हैं, एक बेटे को, एक भाई को, एक परिवार को लाशों के लिए आज तीसरा चौथा दिन हो रहा है, लाश के लिए भटकना पड़ रहा है। लाश उनको नहीं मिल पा रही है, उनके जो लोग मारे गए हैं। इतना दिन, इतना समय, आप सोचिए कि एक दिन में एक हॉस्पिटल में 4, 5, 6 की संख्या में बस इतने ही हो रहे हैं पोस्टमार्टम, बाकी लाशें पड़ी हुई हैं। लोग मतलब इस बात के लिए आरजू कर रहे हैं कि किसी तरह आप लाश को बख्श दीजिए, लाश तो दे दीजिए। ये कितनी शर्मनाक स्थिति है और मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक बात है और हमको इस पर थोड़ा सा एक संवेदनशील होकर इन तरह के सवाल जो हैं, अभी जो मानवीय सवाल हैं, कम से कम उसको इसकी तरफ तो ध्यान देना चाहिए।
और जो महत्वपूर्ण सबसे बात है, जो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए कहना चाहता हूँ कि इस पूरे घटनाओं में सबसे बड़ी बात जो दिल्ली में हुई है कि सबसे ज़्यादा घटना एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की हुई है और ये देश का जो फैब्रिक है, बेसिक जो फैब्रिक है, उसको बचाया है लोगों ने। इसका मतलब है कि लोकल लेवल पर लोगों की कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ये बाहरी लोग लाए गए हैं। इसका मतलब कि ये बहुत ही प्लान तरीके से किया गया है। यूथ का इस्तेमाल जो कहते हैं हम कि अभी सबसे दुनिया का सबसे यूथ अगर कोई देश है तो हमारा देश है, तो क्या इसी के लिए यूथ देश जो कहते हैं लोग कि सबसे ज्यादा हमारा यूथ देश है, क्या वो ये बात कह के इस बात पर खुश होते हैं कि हम इनका इस्तेमाल चाहे जितने लोगों की हत्या करवानी हो, जहां हमने करवाने हो, हम करवा सकते हैं? क्या इस बात की खुशी जाहिर करने के लिए होती है क्या ये दावा? ये बात जरूर हमको सोचनी चाहिए। यूथ को रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, न कि उसको आपने नशा करा के और हाथ में बंदूक देकर और आप जो चाहे दिल्ली जैसे शहर में आप करा रहे हैं। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। Thank you. शुक्रिया। I would like to repeat one point, that is, we find people of Delhi, people of India still love each other. We have seen that on the ground. Usko, we need to protect that in the future also. Only one point that I wanted to say is, the entire country, we all want to believe that the Constitution is working. The Constitution, if it is working, the guardians are the courts of this country, the Supreme Court and the High Courts and other courts. माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन साहब ने जिक्र किए थे हाई कोर्ट में क्या हुआ था. In the Supreme Court what happened, in the High Court what has happened, we don't want to make any comments. But it is for every citizen of this country to understand that unless our courts are independent and unbiased, unless the courts act according to the Constitution, if the courts do not act when such situations are coming, we find it extremely difficult to believe that the Constitution is working through the courts of judicial system of this country. This needs to be set right. Unless the judicial system work, unless the guilty are being brought to book without delay, that's most important. Hate speeches, one after the other continuing. No action is taken if you are belonging to a particular section. But if you belong to the other section, even if a WhatsApp message, you are inside the jail. And yet the courts say, we don't want to do anything until everything is over. That means the people who act behind all those illegalities, unconstitutional criminal activities, they are given free hand, and the fate accompli has to be the nation's fate. I will not take, I will not deal with any other topic because all our friends can say. Only say, whenever we deal with this aspect, the judicial system has to be brought back to the original constitutional manner in which it is acting. Else, we cannot have a civilized society in this country. That's the grave, saddening part that we are facing. This should be set right. Thank you. हुआ तो हमारे गवर्नमेंट को ये ख्याल था कि जिस तरह से और उन्होंने स्टेप्स लिए थे और उस वक्त पूरा नेशन खामोश था, तो ये समझा कि ये भी इस पर भी नेशन खामोश रहेगा, लेकिन लोग खामोश नहीं रहे और मैदान में उतर कर आए। और वो सिर्फ एक कम्युनिटी का मसला नहीं बना, बल्कि वो पूरे इंडियंस का मसला बन गया।
तो अब ये कि जब वो सिटिंग्स बैठ गए, बहुत सी जगह धरने के देकर बैठ गए, तो हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने कहा कि ये हमारा राइट है प्रोटेस्ट करने का। दिल्ली के कोर्ट ने भी कहा कि हमारा राइट है प्रोटेस्ट करने का। लेकिन फासिस्ट का मिजाज है कि वो डिसेंट को पसंद नहीं करते, वो जो है इख्तलाफ को पसंद नहीं करते। तो इलीगली इस सिटिंग्स को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये रायट का हंगामा बनाया। तो बुलवाई आए, दंगाई आए, उन्होंने हंगामा किया और पीछे से पुलिस को खाली करने के लिए एक आइडिया मिल गया। तो ये बेसिकली जो है इलीगली जो राइट है प्रोटेस्ट करने का, उसे ख़त्म करने की इन्होंने कोशिश की। दूसरी बात ये कि जब वो दिल्ली का वो हिस्सा जल रहा था तो हमारी बहुत से लोगों की टीम, 9 लोगों की टीम गई थी पुलिस हेडक्वार्टर्स। पुलिस किसी तरह से उनको कमिश्नर से मिलने नहीं दे रही थी। हम उनके घर चले गए पुलिस कमिश्नर साहब के, और रात के 2:30 बजे पुलिस कमिश्नर साहब आए। तो उस वक्त हमने उनसे कहा कि कमिश्नर साहब, हमें दिल्ली पुलिस पर इतना यकीन था कि दिल्ली के किसी कोने में भी अगर फसाद हो जाए तो 1 घंटे में आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपका स्ट्रेंथ है। लेकिन इधर 3-4 दिन से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपको यानी पुलिस को काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये हमको खुल्लम खुल्ला मैसेज समझ में आ रहा है। और हमने पुलिस कमिश्नर साहब से ये बात भी कही कि पुलिस का वजन ही किया, जबकि नागरिक वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उन पे डर ही नहीं है। लोग खुल्लम खुल्ला डंडे और रॉड्स लेकर फिर रहे, पुलिस खड़ी हुई है। जब पुलिस का डर निकल जाए तो सोसाइटी को सिविलाइज सोसाइटी कैसे बनाया जाएगा? दरिंदों की सोसाइटी बन जाएगी। पुलिस का डर तो होना चाहिए, लेकिन पुलिस का डर आपने खुद ख़त्म कर दिया है। आप ही के लोग खड़े हुए और बुलवाई जो है दंगे मचा रहे हैं। तो ये 2 बातें हमने कही। तो कमिश्नर साहब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि हम स्टेप लेंगे, हम ज़रूर कुछ ना कुछ कंट्रोल करेंगे। तो यही 2 बातें मुझे अर्ज़ करनी थी। से मैं इत्तेफाक रखता हूँ पूरी तरीके से उसमें, और जो तमाम साथियों ने अपनी अपनी बातें कही हैं पूरी तरीके से उनसे सहमत हूँ। सिर्फ 2 पॉइंट यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, 2 बिंदुओं पे छोटी सी 2 बातें, और वो बहुत अहम है इस पूरे प्रक्रिया को समझने के लिए कि किस तरीके से गुजरात मॉडल जो 2002 का था वो दिल्ली में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हुई और काफ़ी हद तक हो भी गया। आप सबको याद होगा कि एहसान जाफरी भूतपूर्व सांसद थे, उन्होंने फ़ोन किए, 100 फ़ोन किए, पुलिस वहाँ नहीं पहुँची, 68 लोग मारे गए गुलबर्ग सोसाइटी में अहमदाबाद में। दिल्ली में भी अभी अशोक भाई बता रहे थे, सभी लोगों ने कहा इस बात को कि दिल्ली में तमाम सारी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी कि एक दूसरे को लोगों ने बचाया। सिखों ने मुसलमानों को बचाया, सिखों ने हिंदुओं ने, मुसलमानों ने। अभी सुबह यहाँ आने से पहले मैं पढ़ रहा था कि हिंदू मुसलमान मिल के एक मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। इस तरीके की तमाम आपको घटनाएं, वीडियो, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन मुझे अभी तक पिछले 4 दिन में एक भी ऐसा इंसिडेंट, वाकया सुनने को नहीं मिला है कि पुलिस ने किसी की जान बचाई हो। आज के टेलीग्राफ में खबर आई है कि गुजराल साहब जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने फ़ोन किया पुलिस को कि 15 लोग फंसे हैं, उनको उनके हिंदू पड़ोसियों ने बचाया, पुलिस नहीं पहुंची वहाँ पे। पुलिस का ये पूरा बर्बर तरीका का एक उदाहरण मैं सिर्फ इतना देना चाहता हूँ आपको कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के एक्टिविस्ट जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, डिटेन किया, गिरफ्तार किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो वॉक करके, चल के पुलिस के पास जा रहे हैं। कल उनको कोर्ट में जब पेश किया गया तो व्हील चेयर में थे। मेरी कल उनके भाई से बात हुई, उनके दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं पुलिस ने, थाने में पिटाई हुई है उनकी। एक वकील उसी प्रदर्शन में खुरैजी में, वहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया। इशरत जहाँ लॉयर हैं, उनके साथ भी बदसलूकी हुई है थाने में, उनके साथ भी हिंसा हुई है। इस तरीके का पुलिस का व्यवहार गुजरात मॉडल नहीं है तो क्या है ये? दूसरी, MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने 2 SIT गठित की हैं। 2 DCP उसमें हैं। एक जॉय तिर्की हैं। जॉय तिर्की साहब का बायोडाटा ये है कि वो जामिया और JNU
की हिंसा की जांच कर रहे थे। अभी तक उसमें एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाए। वो इतने बड़े दंगे की या हिंसा की, प्रायोजित हिंसा की, ये कैसे निष्पक्षतापूर्ण जांच करेंगे। दूसरे एसआईटी जो बनी है वो है राजेश देव साहब, डीसीपी। ये राजेश देव वही डीसीपी हैं जिनको अभी चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने उनको ड्यूटी से बेदखल कर दिया था, उनके रवैये को देखते हुए। तो ये दो अफसर कैसी जांच करेंगे, कितनी निष्पक्ष जांच होगी, ये इनके पिछले हाल के कारनामों से ही साफ है। इसलिए जो बात हुई है कि वो हाई कोर्ट के या किसी जुडिशियल किसी जज के देखरेख में, जब तक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट की निगरानी में जब तक ये जांच नहीं होगी, जब तक ये जांच, क्योंकि पुलिस, दिल्ली पुलिस अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता, पूरी तरीके से विश्वास खो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 3 दिन से जो फसाद से मुतासिर इलाके हैं, ख़ास तौर से जाफराबाद है, मुस्तफ़ाबाद है, तो वहाँ पे हम लोग मुस्तकिल कैंप किए हुए हैं। और मैं कोई बात, जो भी बात कहूँगा वो जो हमने डायरेक्टली देखी है या ख़ुद वेरीफाई की है, उसकी बेसिस पे कहूँगा। ये एक चीज़ तो हमने गुजरात का फसाद भी देखा और ये भी देख रहे हैं। तो एक चीज़ मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि गुजरात के फसाद में आपने देखा होगा कि मीडिया ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। कुछ ऐसे जर्नलिस्ट, आपको याद होगा दिलीप साहब, देसाई साहब वगैरह की वजह से वो जो घिनौनी फसाद की सूरत थी वो सामने आई, एक्सपोज हुई। उसका हमारे मुल्क पे बहुत अच्छा असर पड़ा, इस माना करके कि काफ़ी दिनों तक फसाद का सिलसिला रुक गया और उसकी तरफ लोगों की तवज्जो हो गई। अब काफ़ी दिनों के बाद दिल्ली में बिल्कुल उसी पैटर्न में दोबारा ये फसाद हो रहा है। मुझे जो सबसे बात जो स्ट्राइक करती है वो ये है कि मीडिया का जो, पहले हम पुलिस को और उसको हॉस्पिटल को बाद में देखेंगे, मीडिया का जो रोल होना चाहिए था वो, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो वहाँ मुझे मिलते रहे हैं कि क्या आप लोगों ने वो रोल आपने अदा किया या आप अदा कर पाए। तो एक चीज़ तो मैंने ये देखी कि कोई, मिसाल के तौर पर वो हॉस्पिटल गुरु तेग बहादुर, जहाँ तकरीबन 30 लाशें अभी जो हैं विदाउट पोस्टमार्टम पड़ी हुई हैं, तो वहाँ मीडिया वाले अंदर घुस नहीं पा रहे थे। बड़े बड़े अखबार के नुमाइंदे थे और टीवी वाले थे, और हम किसी तरीके से अंदर मैनेज करके घुस गए। तो वो 2-4 लड़कियाँ थीं, वो ये कह रही थी कि बस किसी तरीके से आप हमें भी अंदर ले चलिए। मैं ले गया और लोगों को दिखाया कि भाई कैसे क्या कौन जख्मी हो। लेकिन हॉस्पिटल वालों का ऐसा रवैया था जैसे कि हम कोई जुर्म कर रहे हैं और हमको धक्के मार के निकालना, ये उनका रवैया था। तो वहाँ पे एक चीज़ जो ख़ास तौर से नज़र आने वाली है वो ये है कि आपने सुना होगा कि बहुत मीडिया में ये बात आई कि एक इमाम साहब, मुअज्जिन साहब शहीद हो गए। ठीक, बहुत ही इसको फैलाया गया। कोई इमाम साहब, मुअज्जिन साहब शहीद नहीं हुए। जो उस मस्जिद के जो ट्रस्टी थे, मुतवल्ली थे, वो वहाँ पे इस हालत में पड़े हुए थे कि उनका पैर टूटा हुआ था, उनका हाथ टूटा हुआ था और इस नंगे, तकरीबन हाफ नेकेड पड़े हुए थे। उनको वो था नहीं था। उनके लड़के हैं, उनका नाम है इकबाल साहब। उनको उस हालत में देखा तो हम उनसे गए, उनसे सारी बातें वेरीफाई की। उन्होंने हमको बताया कि सबसे शॉकिंग बात जो थी हमको ये कि हमको, आपको कैसे मारा, किस तरह मारा। उन्होंने कहा कि मस्जिद में मगरिब की नमाज़ हो रही थी और जैसे ही नमाज़ ख़त्म हुई तो इमाम और मुअज्जिन साहब जो है वो बाहर निकले, तो गेट के ऊपर इमाम और मुअज्जिन को तो लोगों ने मारा। हमको अंदर पुलिस ने घुसकर अंदर मारा क्योंकि ये नमाज में थोड़ी देर के से अंदर रह गए थे। तो उन्होंने कहा हमारा हाथ पैर जो तोड़ा है वो तो फ़ौज वाले कह रहे थे, क्योंकि वो इतने बूढ़े आदमी हैं, इतना समझते नहीं हैं फ़ौज और पुलिस में क्या डिफरेंस होता है, कि उन्होंने हमको मारा और तोड़ा और इस हालत में पहुँचाया। ये तो पुलिस के बारे में इस एक तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो शख्स वहाँ पे हॉस्पिटल में भी मौजूद है, आप भी जा सकते हैं। और अफसोस की बात है कि सब लोग बात कर रहे हैं, अभी तक वहाँ पे उस हॉस्पिटल में जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मौजूद हैं, लाशें भी हैं और आदमी भी हैं जो ज़ख्मी हैं, उनको देखने कोई नहीं गया है। न तो लीडरों में से गया है और न तो ये है।
जो है उसका ये भी वजह है कि वो देखने ही नहीं देते, घुसने ही नहीं देते। तो आप लोग वहाँ जाइए और वहाँ जाकर वेरीफाई करिए कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको वो सही है और कितना वहाँ पे होना क्या चाहिए। वहाँ पे लोग इतने परेशान हैं, पुलिस का ये रवैया है, और दिल्ली गवर्नमेंट जिसकी इतनी तारीफ सुनी है आपने। मेरा खुद एमडी से मैं मिला हूँ और उसको ये क्या कराया हूँ कि मैं प्रेस में जा रहा हूँ, और ये तो मेरा उस पर नेशन टीवी वाले वहाँ पे नुमाइंदे आ गए, मैंने वहीं पे उनको बताया कि देखिए ये दिल्ली पुलिस, ये दिल्ली हॉस्पिटल के बारे में आम आदमी पार्टी कितना प्रोपेगेंडा करती रही है, और इलेक्शन में वाकई लोगों ने अगर वोट डाला है तो 2 वजह से डाला था, एक हॉस्पिटल की वजह से, एक एजुकेशन की वजह से। तो मैंने कहा ये हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए। तो ये सब इलेक्शन की बातें थी। अब इलेक्शन के बाद वहाँ पे जबकि लोगों ने वोट डाला है आम आदमी पार्टी को और वो पिट रहे हैं और मारे जा रहे हैं, उसकी एक मेन वजह ये भी है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के सपोर्टर थे, तो बीजेपी खिसियाई हुई। ये बिल्कुल ऑब्वियस रीज़न है। जिस पार्टी के लिए लोगों ने की, जिसकी वजह से झेल रहे हैं, उस पार्टी का यह रवैया है। उनका हेल्थ मिनिस्टर का क्या हुआ? आज तक वहाँ पे कोई भी उनका कोई मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचा हो तो बताइए। ये मीडिया वाले वेरीफाई करेंगे ना कि आप लोगों को पता चला कि गुरु तेग बहादुर में हॉस्पिटल में केजरीवाल साहब आज तक क्यों नहीं गए, उनका हेल्थ मिनिस्टर क्यों नहीं पहुँचा, उनके 5 जो ये MLAs थे वो क्यों नहीं पहुँचे। बाकी लोग के आम आदमी सवाल पूछा जा सकता है, आप पूछिए, आप इसको वेरीफाई करिए। ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा। ये तो रहा इसका रवैया। पुलिस के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे पास सारे SMS मौजूद हैं। हमने ये किया कि जिन इलाकों में जैसे शिव विहार है, आपका करावल है, कबीरपुर है, इन इलाकों में जो लोग मकानों में फंसे हुए थे, तो हमने जो स्पेशल कमिश्नर हैं पुलिस के, जो अब पुलिस कमिश्नर बनने वाले हैं आपके SN श्रीवास्तव साहब, उनसे कांटेक्ट किया और वो सारे SMS में ऑन रिकॉर्ड हैं। मैंने उनको सब जहाँ की जैसे जैसे हमको पता चलता था तो हम निकाल के लाते थे। किसी यहाँ पे 25 औरतें फंसी हुई थीं, किसी यहाँ बच्चे फंसे हुए थे, किसी यहाँ कुछ फैमिलीज फंसी हुई थीं, वो निकल नहीं पा रहे थे डर से वहाँ पे जमा थी। उसके ऊपर उनको आग भी लगाई जा रही थी। तो हम उनको मुस्तकिल ये उनके राब्ते में थे और उनसे ये कहते थे कि भाई यहाँ पे ये लोग फंसे हुए हैं, आप इनकी मदद करिए। तो पुलिस का एक रवैया वो था, लेकिन पुलिस का एक दूसरा रवैया ये भी था। इस सिलसिले में उन्होंने मदद की है और काफ़ी लोगों को वहाँ से एवेकुएट कराया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझे एक बात समझ में आई कि जब ये चाहें तो जिस लेवल का चाहे फसाद करा सकते हैं, और जब ये चाहें तो किसी लेवल का फसाद हो उसे रोक भी सकते हैं और अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो पुलिस जो है वो ग़ुलाम है। एक बात मेरे ये समझ में आई, बॉसेस की ग़ुलाम है। जैसे बॉसेस कहते हैं उनको उनकी कानूनी क्या ड्यूटी है उसकी उनको कोई परवाह नहीं है। बॉसेस कहते हैं तो अच्छा काम करते हैं, बॉसेस कहते हैं तो बुरा काम करते हैं। अब इस सिलसिले में मीडिया का जो वॉचडॉग का रोल है वो ये वक्त है कि आप वाकई वो साजिशाई का रोल आप अदा करें। आप में से कुछ लोग खड़े हों और उन इलाकों में जाएं। यहाँ पे हमसे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको, वहाँ पे जाएं। कितनी लाशें हैं? 37-38 तो हैं। उसके बाद तकरीबन 25,000 मकानात जो हैं वो मुतासिर हैं, 5,000 फैमिलीज डिस्प्लेस्ड हैं, 250 लोग ज़ख्मी हैं। ये जो हम लोगों ने काउंट किए हैं और हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा वहाँ पे जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आज ईदगाह के ऊपर एक बाकायदा कैंप लगा है लीगल, वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप हमारे ऊपर रिलाई मत करिए। आपको मैं दावत देता हूँ कि आप वहाँ जाइए। अब हालात तकरीबन काफ़ी हो गया, अब एक्सेस में है, आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। आपको ये भी देख के ताज्जुब होगा कि खाली मुसलमानों को नुकसान नहीं हुआ है। आप पूरे जैसे ही मुस्तफ़ाबाद में दाखिल होंगे तो शुरू की सारी दुकानें जो हैं वो सब हिंदुओं की हैं, किराएदार मुसलमान हैं। दुकानें तो जलाई गई हैं, नुकसान तो दोनों ही का हुआ है। मारे जाने वालों में भी कुछ लोगों की ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही हैं, तो नुकसान दोनों का हुआ है। और सब ये पुलिस की इसमें शिरकत है, इसका वाज़ेह सबूत मौजूद है। अगर मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया, अब आप लोग जो सवाल पूछना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।